Hello students, welcome to a new session where we are going to discuss about law. See students, in your previous classes and your course syllabus, you might have used the word law, okay, because we go through different laws, okay, act, yes or no, that is our Partnership Act, Companies Act, okay, Consumer Protection Act, clear? So different act and laws, you have gone through those parts. But see, actually what is law? Actually you don't know what is law, how it is prepared, okay, how it is prepared or made, who made this, clear? And what is the need of law, need and importance of law in our life, clear? In our life that is our general life, clear, and our professional life, clear? Basically, as we know, in our life we are doing two activities, that is, one is economic, another is non-economic activity, clear? Economic, to earn something, that is our professional life, and non-economic, that is our personal life, clear? In both the life, clear, each and every person need law, okay, and you must have the knowledge of law, okay, because law, as we know, see, for example, if you purchase a electronic gadget, okay, suppose you purchase an electronic gadget, so what we do, while we purchase an electronic gadget, a user manual was there available in the package. So what we do, before using that particular product, what we do, we go through the user manual, okay, we may go through the user manual, or the dealer, they used to learn us about how to use that particular product, what are the rules, what are the regulations, clear? So that if we use those rules and regulations, then only the product can provide better service to us. For what? We purchase that product, clear? We purchase a product to satisfy our need, any kind of need, clear? So if we follow those rules, clear, then only the product can satisfy our needs, clear? If not, if we don't follow the rules, then what we get? We get adverse result, negative result, yes or no? Suppose you purchase a mixer grinder, clear, and you purchase it without going through the rules and regulations, user manual. If we go to use that mixer, then what happen? It may exploited, clear? Then it will definitely harm us, clear, and our nearby peoples, clear? So that's why it is better to know the rule before going for a particular thing, clear? Particular thing, anything, clear? Here I use the example of a product, but we can say for anything there is a rule for everything. If we follow the rule exactly, appropriately, as it is prescribed, then only we get the service or result what we want from that particular thing or particular service or particular product, clear? As we do, we are in the profession, we are in commerce, clear, we are in the field of commerce. As we know, before going through the accounting, clear, what is accounting, everything, and before doing accounting treatments, what we do, it is, as already I have told you and other teachers are also suggested, that in accounting, if you don't know the rules, the principles that we say, the concept and convention, we cannot go for treatment of the accounts, of the business transactions, yes or no? Only when you know the rules, the principles,
the concept and convention, then only we can follow or we can treat the business transactions. Clear? That is the rule, regulation, principles. Those are framed, clear, created to support us for getting a appropriate result from a particular thing, a product or service or anything. Clear? That is law. That is law. वही होता है law. Students, in our day-to-day life, law is very important. So today in this class, I will give you some knowledge, some idea, clear, about exactly what is law, where it came from, clear, where it came from, what is it, clear, what is the how a law is constructed. See students, actually क्या होता है, ये मैंने पर्सनली देखा है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स का लॉ का क्लासेस खत्म हो जाता है, ठीक है, दे कंप्लीट देयर लॉ क्लासेस, लॉ क्लास दैट मीन्स जो एक कोर्स में रहता है पूरा खत्म हो जाता है, फिर आप उनको पूछोगे कि ये जो लॉ कैसे बना, कैसे बनता है, क्या है लॉ, क्लियर, दे फेल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बिकॉज सी स्टूडेंट्स, आज के जमाने में क्या होता है कि सब बच्चे मतलब बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं, मतलब दे वांट टू गेट क्लियर नॉलेज अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली, क्लियर, ओनली जो कोर्स में जो सिलेबस में वही जानना है. तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्लियर. एंड लॉ एक ऐसा पेपर है जो कि आपके टीचर्स आपको बताएंगे, डेफिनेटली समझने में बड़ी आसानी लगेगा, ठीक है, मजा आएगा आपको, है कि नहीं. जब आप पढ़ोगे देन यू फील वेरी हैप्पी, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसमें कि आपको बहुत ही फनी लगेगा, रियल प्रैक्टिकल थिंग्स, बहुत ही मजा आएगा, क्लियर. सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ जाएगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, टू राइट, क्लियर. दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम क्यों होता है, बिकॉज यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट. आपको अगर कॉन्सेप्ट में नहीं पता होगा तो क्या होगा, आपको वो प्रॉब्लम हो सकता है. सो दैट्स व्हाई it is better to know the concept, the conceptual things. Okay, so in this today class हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ना लॉ पेपर आपके लिए पूरा का पूरा नया है कि नहीं. पहले से आप लोगों ने ये चीजों को नहीं देखा है, नहीं समझा है, सुना है ये वर्ड बट नहीं देखा है कभी भी, है कि नहीं, उसको फील नहीं किया, किधर से आया, क्या हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है कि नहीं. तो आज हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, आप लोग डिसाइड करोगे कि आपके पास ये नॉलेज है कि नहीं आफ्टर दिस क्लास. क्लियर? ओके, तो देखो लॉ. तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ. क्लियर? इट्स ओरिजिन, कहां से आया, ठीक है, लॉ किधर से आया और लॉ में क्या क्या जाता है, ठीक है कि नहीं, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ लॉ. नीड ऑफ लॉ, लॉ की जरूरत क्या है हमें. ओके, क्लियर. सो सी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आवर कंटेंट. सी, पहले तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि लॉ की जरूरत है या नहीं है. ठीक है, सोचो एक सोसाइटी है, ठीक है, एक सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग रहते हैं, ठीक है, दैट इज ए सिंपल एग्जांपल. एक सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं, क्लियर. तो क्या होता है कि वो जो सोसाइटी के अंदर हम क्या बनाते हैं, एक रूल्स बनाते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है कि नहीं. जैसे कि चलो एक सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं. तो सोसाइटी में बिल्डिंग्स हैं, तो क्या रहता है, पहले तो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है कि नहीं. दैट इज हमारा वो रूल है कि हम एक सिक्योरिटी गार्ड को रखेंगे. क्यों रखेंगे, अगर सिक्योरिटी गार्ड को नहीं रखेंगे तो बाहर के कोई भी इंट्रूडर्स, क्लियर, एनिमी हो सकते हैं. इंट्रूडर मतलब बाहर के लोग, अननोन पर्संस, वो अपने सोसाइटी में आ जाएंगे इजीली. आने से क्या होगा, दे मे हैव सम गुड रीजन, मे हैव सम बैड रीजन, तो वो आके कुछ भी कर सकते हैं. तो वो जो एक डर है, वो डर को
कम करने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, रूल बनाया कि सिक्योरिटी गार्ड रहेगा। क्लियर? ओके, ताकि अपने सोसाइटी के अंदर कोई विदाउट आवर परमिशन ना आ पाए। ठीक है, अगर कोई भी आता है तो उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, कौन आया, कौन गया, किस रीजन से आया, किस रीजन से गया। ठीक है, वो हो गया एक। फिर हम क्या करते हैं, जो बिल्डिंग में जो भी लोग सब रहते हैं वो लोगों के लिए हम क्या करते हैं, उन लोगों के लिए फाइनेंशियल जो है मेंटेनेंस चार्जेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? मेंटेनेंस चार्जेस बनाने से देखो, हर एक लोग अपने अपने फ्लैट में रहेंगे, तो वो लोग सोचेंगे कि अगर आप किसी के फ्लैट के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा डेकोरेट किया है कि नहीं, बट अब बिल्डिंग के बाहर आओगे तो बिल्डिंग बहुत ही गंदा दिखेगा बाहर से, है कि नहीं? ये रियल है, फैक्ट है। क्यों? बिकॉज सब अपना अपना देखेंगे कि चलो मेरा फ्लैट है, मैं वो फ्लैट को कैसे सुंदर बनाऊं, डिजाइन बनाऊं, अंदर से कैसा अच्छा लगेगा, उसका वो मेरा टेंशन है, वो उसके लिए मैं अपना पैसा खर्चा करूंगा। बट बिल्डिंग क्या होता है, कैसा दिखता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इससे होगा क्या कि अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे वो चीजें, तो बाहर से अगर कुछ खराब हो गया तो अंदर भी डेफिनेटली खराब होगा ही होगा, है कि नहीं? बाहर से अगर कुछ इंपैक्ट आएगा तो धीरे धीरे वो इंपैक्ट किधर आएगा, अंदर भी आएगा। सो दैट्स व्हाई वो जो बिल्डिंग का क्या है, मेंटेनेंस के लिए जो है, लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, बाकी जो कलर, क्लियर, ये सब मेंटेनेंस के लिए। बाकी सोचो कि मोटर लगा है पानी चढ़ाने के लिए, उसका मेंटेनेंस है, लिफ्ट का मेंटेनेंस है, ठीक है कि नहीं? सिक्योरिटी गार्ड है, बाकी जो सर्वेंट्स काम करते हैं गार्डन वार्डन में उनका है। तो ये सब मेंटेनेंस क्या करते हैं कि हर एक आदमी कुछ कुछ देगा, ताकि क्या वो जो सब आसानी से चलेगा। अगर कोई कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो जो फाइनेंशियल है, कुछ बैलेंस है, उससे यूज करके हम उसको रिपेयर कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इससे क्या होगा, मेंटेनेंस सब चार्जेस देते हैं। फिर वो सब मैनेज करने के लिए भी हमने रूल बनाया कि एक क्या सोसाइटी का एक चेयरमैन रहेगा, एक प्रेसिडेंट रहेगा, एक ट्रेजरर रहेगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम्स को देखेगा, समझेगा, वो करेगा, है कि नहीं? तो ये सब चीजें हमने क्यों बनाया? क्यों? रीजन इज ताकि हम जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो आसानी से विदाउट एनी टेंशन, क्लियर, विदाउट एनी प्रेशर अपना अपना काम आसानी से करे, आराम से ऑफिस जाए, काम करें। क्लियर, उनको घर का टेंशन नहीं है कि मेरे घर पे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोग को क्या होगा, क्या आएगा, क्या जाएगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, उनका टेंशन नहीं है। वो फ्री माइंड से गए, काम किए, फिर आराम से आए घर पे। ठीक है, आपके घर पे भी सोचो कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, और आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो मम्मी पापा घर में काम करते हैं, ठीक है, और बच्चे को बाहर गार्डन में खेलने के लिए छोड़ देते हैं। दे फील सिक्योर दैट चलो बाहर भी कोई अगर अपने बच्चे गए खेलने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, इससे क्या पता चला आपको कि रूल्स हमने क्यों बनाया? रूल बनाने से कोई भी, ठीक है, हर एक आदमी अपना अपना क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमने प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब लोगों को क्यों रखा? क्योंकि रूल है कि वो अपना अपना काम करेंगे। क्लियर, तो सब अपना अपना काम करेंगे, सब पीसफुली आराम से चलेगा, और अपने सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा भी तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए भी हमारे पास रूल्स है। क्लियर है कि नहीं? उसके लिए भी हमारे पास रूल है कि हम कैसे वो चीजों को कम कर सकते हैं। ओके, क्लियर? तो रूल बनाया हमने, किस लिए रूल बनाया? रूल बनाने से हमें कोई टेंशन नहीं होगा, हम अपना सिक्योर सोशल लाइफ आसानी से जी सकते हैं, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी टेंशन, एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर ओन ऑब्जेक्टिव एम ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, अगर सोचो लाइफ है तो प्रॉब्लम भी आएगा, कि सोचो प्रॉब्लम भी आ गया तो आ गया, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी हैव लॉ, वी हैव रूल्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो कि आसानी से विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम सॉल्व हो जाएगा, फिर अपना लाइफ एज यूजुअल हो जाएगा, है कि नहीं? प्रॉब्लम तो होता है डेफिनेटली, लिफ्ट खराब होगा डेफिनेटली, गार्डन खराब होगा डेफिनेटली, सिक्योरिटी गार्ड में भी कोई प्रॉब्लम आएगा डेफिनेटली, बट वी हैव सम सिस्टम्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्लियर? तो रूल्स बनाने से क्या होता है कि सोशल लाइफ एक आसानी से चलता है, स्मूथली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी प्रेशर। क्लियर? पीसफुली, क्लियर, स्ट्रिक्टली,
Yes or no? Without any tension, without any pressure. If we have any pressure, if we have any tension, then those tension, those pressures can be solved with just some rules and regulations. Clear? That is the need of law. ठीक है? कि देखो अभी भी देखो सोसाइटी में कि सोचो कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया, क्या एक जो सोसाइटी का, कि सोचो कि अपना पूरा जो देश है, पूरा इंडिया, वो सोचो कि एक सोसाइटी है, हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, सब में एक एक क्या है, सब एक एक बिल्डिंग है, ठीक है कि नहीं, सब एक एक फ्लैट है, तो सब लोग क्या करते हैं, मिलके हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेसिडेंट को बनाते हैं, है कि नहीं, चीफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, अपने लोकल कंट्रोल के लिए एमएलए बनाते हैं, एमपीज बनाते हैं, ठीक है कि नहीं, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट वाइज, मतलब सेंट्रल वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कंट्रोल करने के लिए अपने पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल लेवल के हो और स्टेट लेवल के हो, अपने पास पुलिस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं जो फॉरेस्ट कंट्रोल करने के लिए, फॉरेन चीजों को कंट्रोल करने के लिए वो भी है, तो वो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, है कि नहीं, उनका काम कैसे होगा, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो सब के लिए हमने क्या बनाया, रूल्स बनाया, ठीक है, ताकि वो जो सब काम आसानी से हो पाए, क्योंकि वो अगर अच्छा से काम करेंगे तभी अपना काम इजीली हो पाएगा, है कि नहीं, ये हो गया। बाकी सब लाइफ में ये हो गया। तो नॉन इकोनॉमिक, चलो कि हम कैसे पीसफुली रहेंगे, उसके लिए नॉन इकोनॉमिक के लिए एक्टिविटीज के लिए हमने लॉ बनाया। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी है, हम काम करेंगे डेफिनेटली, क्लियर, हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, है कि नहीं, प्रोफेशन में जाएंगे, कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो टाइम पे भी डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा, क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कौन किसके लिए करेगा, ये सब भी कंप्लीट आ सकता है, बीच बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सब सॉल्व करने के लिए भी प्रोफेशनल लाइफ को, दैट मींस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इजीली स्मूथली रन करने के लिए हमने उसके लिए भी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाया है, ताकि सब काम आसानी से हो पाए, कोई भी सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो इजीली सॉल्व हो पाए, ताकि लोग फिर से अपने अपने लाइफ में अपने अपने हिसाब से चल पाए, है कि नहीं। सोचो कि आप एक बार फेल हो गए एग्जाम में तो जिंदगी क्या खत्म हो जाती है, नहीं, एक बार फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो सी स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों को सब कोई एडवाइस देता है, सब देगा भी, कि प्रोफेशनल करियर जो है ये एक ऐसा करियर है कि यू कैन नॉट सक्सेड अनलेस यू टेस्ट योर फेल। आप तो एक दो बार डेफिनेटली फेल हो गए, क्योंकि जब तक आप फेल ना होगे आपको आगे नहीं जा पाओगे। जो है ना, जो आगे बढ़ने का जो क्या है, द एक्साइटमेंट, जो मजा, वो तभी आएगा जब आप प्रीवियस स्टेज में एक बार फेल होगे, क्योंकि फेल होगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। देखो हर साल बहुत सारे बच्चे प्रोफेशनल से एग्जाम देते हैं, बट उसमें से कई बच्चे ही क्लियर करते हैं। क्यों? इसका रीजन है कि इट रिक्वायर्ड पर्सनल एक्सपीरियंस। अनलेस यू पर्सनली एक्सपीरियंस योर नॉलेज, योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आप अगर सोचो एक प्रोफेशनल हो जाते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी आ जाती है, लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो सोचो कि आप विदाउट एनी फेल अगर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, आप उसको आसानी से हैंडल नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। जैसे कि मैं क्लासेस में भी एग्जांपल देता हूं कि सोचो कि एक फार्मर है, उसको अगर आप गिफ्ट में एक कार दे दोगे तो वो क्या करेगा, उसका वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं वो कैसे हैंडल करते हैं। वो कार के बदले में आप अगर उसको एक अच्छे से साइकिल देते, अच्छा ब्रांड का, तो वो उसको परफेक्ट यूज करता है कि नहीं। तो जो जिसके हिसाब से, मतलब आप वो स्टेज में जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, उसको हैंडल करने के लिए आपके पास उतना स्टेबिलिटी होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कभी, वो एक दो बार फेल होने के बाद ही। तो वे लॉ भी वैसा ही है, हम सब काम करते हैं, वी डेफिनेटली फेल होंगे। फेल मतलब जो ऑब्जेक्टिव इंटेंशन से आप करते हैं उससे कुछ इनवर्स रिजल्ट, एडवर्स रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट हमें डेफिनेटली मिलेगा, बट उसका मतलब नहीं कि हम उधर रुक जाएंगे, हम आगे जाएंगे फिर से। तो उसके लिए लॉ बनाते हैं हम, लॉ का उसमें भी है, प्रोसीजर है
कि अगर चलो हम बनाते हैं कुछ ना हो, सोशल डिस्टरबेंस ना हो, अगर हो भी गया तो उसको हम सॉल्व करते हैं बाय रूल्स, है कि नहीं? चलो दो जन मैरिज किए, है कि नहीं? फैमिली में एक बॉय गर्ल मैरिज किए, सोचो कि उन लोगों के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो लोग अपने अपने मतलब म्यूचुअली वो नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या क्या करते हैं? वी हैव रूल्स के जो हो गया ना, गलती हो गया, चलो गलती से हमने दोनों का मैरिज कर दिया, तो अभी उसको सॉल्व करना है, उसके लिए हमने रूल बनाया है कि चलो दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है? डिवोर्स हो गया, फिर दोनों अपने अपने लाइफ में खुशी से बचो, है कि नहीं? तो उसका भी है सॉल्यूशन। उसके बाद फिर आप दूसरा मैरिज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी रूल है। तो सब चीजों के लिए रूल है। तो आज हम देखेंगे कि देखो, आप फिर अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से चीज के लिए कौन सा रूल है? रूल क्या है? रूल तो सब होता है, सब चीज के लिए एक रूल है क्या? नहीं, सब हर एक डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए वी हैव डिफरेंट रूल्स। ओके, क्लियर? तो वो बस हमें क्या करना है कि वो जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, अपने माइंड में रखना है, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा रूल किसके लिए एप्लीकेबल है। ओके, एंड कौन सा जो सेक्शन, सेक्शन मतलब द पार्ट, रूल का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, हर एक चीज के लिए, फैमिली के लिए अलग है, प्रॉपर्टी के लिए अलग है, बिजनेस के लिए अलग है, वो हम देखेंगे सब डिटेल में। क्लियर? ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है ना, आपको समझ में तो सब आएगा डेफिनेटली। मैंने आपको पहले से बोल दिया कि आप जब सुनोगे पूरा मजा आएगा। आई एम श्योर कि अभी आपने जो भी सुना, आपने कुछ नया सुना, कुछ पुराना सुना, कुछ पता था, कुछ नया सुनने को मिला, कुछ जानने को मिला, सब आ गया दिमाग में, समझ में आ गया। बट अभी एक थोड़ी देर के बाद अगर आपको वो एनालिसिस करने के लिए बोलेंगे, आप भूल जाओगे। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, क्लियर, व्हाट आई सजेस्ट यू कि लॉ का पेपर ऐसा है, सब नोट करके रखो, नोट करके रखो, है आपको मालूम है, बट जब आपको उसको वो चीज को यूज करना है, यू मस्ट हैव टू गो थ्रू योर नोट्स, ताकि माइंड में है फ्रेश अप हो जाए, अपडेटेड हो जाए, ठीक है? सो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें जो है वो लिखूंगा, ठीक है? डिक्टेट मैं सोच रहा था कि डिक्टेट करूं, आप लोग एक एक लिखो, बट डिक्टेट करने से आपको मतलब मुश्किल होगा। सो दैट्स व्हाई मैं लिखूंगा, फिर आपको उसको देख के नोट करना है, ठीक है? क्लियर? मैं लिखूंगा अपने हिसाब से, मैं आपके लिए वेट नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द लाइव क्लास, है कि नहीं? लाइव क्लास नहीं है कि मैं लिखूंगा, आपके लिए वेट करूंगा, फिर इरेज करूंगा, फिर लिखूंगा। दिस इज वीडियो क्लास, वी हैव टेक्निक। आपको बस मैं एक सेंटेंस लिख दिया, आपको पॉज करना है, वो लिखना है, फिर प्ले करके फिर वो लिखना है, ठीक है? तो देखो क्या है कि इधर मैं क्या करूंगा, पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट थिंग जो कि मैंने बोला कि वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कि नीड ऑफ लॉ। फर्स्ट देखो, ये आपको कोई नहीं बताया होगा, पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि लॉ क्या है, उससे पहले मैं बोल दूंगा कि नीड क्या है, जरूरत क्या है, इसके लिए हमने डेवलप किया। जरूरत जो है ना, नीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नीड will describe whether how you keep those things with you or not. जरूरत है कि नहीं? सोचो कि आपके पास बाइक है, साइकिल है, ठीक है कि नहीं? The need determine how you care for your things. Yes or no? See, you have bike, you have cycle, bicycle. Clear? बाइसाइकिल जो था प्रीवियसली था, अभी आपने बाइक परचेज किया, अभी आप हर एक चीज में बाइक ही यूज करते हो, तो द नीड ऑफ बाइक इज वेरी हाई एज कंपेयर टू बाइसाइकिल। तो क्या होगा, बाइसाइकिल का आपने घर के अंदर रख दिया, एंड केयर कैसा रहा? केयर नहीं है। केयर लोगे क्या आप? नहीं, डेफिनेटली कम हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, पूरा जंग लग जाएगा, है कि नहीं? ब्रेक फेल, ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब आपने उसके लिए अच्छा केयर नहीं लिया, बिकॉज उसका इतना जरूरत नहीं है। बट बाइक आप डेली वॉश करोगे, प्रेशर चेक करोगे, पेट्रोल डालोगे, ऑयलिंग सब पूरा परफेक्ट रहेगा। क्यों? बिकॉज वो नीड है, वो जरूरत है, इसके लिए आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से रखा है कि नहीं? जैसे कि सोचो अभी आपका एक प्रीवियस चैप्टर खत्म हो गया, प्रीवियस कोर्स खत्म हो गया, वो जो है ना उसका बुक्स आप कार्टून में भर के रख दोगे ऊपर, और नहीं तो बेच दोगे, और नहीं तो किसी को दे दोगे, बिकॉज उसका अभी जरूरत नहीं है।
जो नया वाला है उसको पूरा क्लियर कवर ओवर करके स्टाइलिश करके रखोगे, दैट इज द नीड, वो आपको अभी जरूरत है। आगे ना समझ में, बिकॉज नीड विल डिस्क्राइब क्लियर हाउ वी टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। तो इसलिए मैं नीड आपको इसलिए बता रहा हूं पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, और आप समझो कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट कीप इट इन माई माइंड फॉर एवर। ओके क्लियर? सो दैट्स व्हाई पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट इज द नीड ऑफ लॉ। ओके क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, और एक चीज है, जो लॉ है और एक्ट है, आप लोगों ने देखा होगा एक्ट जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है कि नहीं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, है कि नहीं? सिक्योरिटीज एक्ट, जो भी पढ़ा होगा। वो बोला कि एक्ट है सर, उसमें एक्ट लगा है, उसमें लॉ तो नहीं लगा है। वो भी रूल्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, देखिए नहीं। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बिकॉज यू ऑल क्लियर +2, क्लियर +2 कॉमर्स, तो उसमें आपका एक चैप्टर था, एक ले लो कि अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो कि पार्टनरशिप एक्ट हो। वो एक्ट में हमने क्या देखा कि क्या होता है, कैसे होता है, प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्व कैसे होता है, डेफिनेटली, है कि नहीं? तो वो सब एक्ट में आपने देखा। नाउ देखो मैं आप सिंपल चीज रहा हूं कि लॉ एंड एक्ट में आप सोचोगे सर आप लॉ के बारे में बोल रहे हैं, आप एक्ट के बारे में नहीं बोला। सोचो कि दोनों फॉर नाउ दोनों इक्वल है, एक्ट जो है लॉ भी वो है, बट बस थोड़ा क्या है, सोचो कि ये है लॉ, उसके अंदर आता है एक्ट। क्लियर? ये है लॉ, उसके अंदर आता है एक्ट। क्लियर? ये मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, ये मैं बाद में बोलूंगा आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, और दूसरे भी टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि वो मैं आपको बताऊंगा। बाई लॉ है, ठीक है, ऑर्डिनेंस है, ये सब बोलूंगा आपको। बट पहले आप ये चीज, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो लॉ क्लास पढ़ने से पहले आप लोगों ने थोड़ा गया है कि नहीं, आपके दिमाग में वो थोड़ा गया है कि ये जो ना एक्ट लॉ गया है आपके दिमाग में, बट एक्ट एज एक्ट गया, एक्ट के रूप में गया है, लॉ के रूप में नहीं गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि लॉ एक्ट दोनों एक ही है, बट लॉ जो है ना, ये सोचो कि ये है लॉ, उसके अंदर आता है एक्ट। क्लियर? इट मीन्स देखो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, क्लियर, जैसे कि सोचो कि आपने पढ़ा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है आप लोगों ने, है कि नहीं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्लियर, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ओके, सिक्योरिटीज एक्ट, जो सिक्योरिटी पढ़े है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज अवेलेबल होते हैं, है कि नहीं, जो कि अपना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब सिक्योरिटी। तो ये सब क्या है, डिफरेंट एक्ट है, इसके लिए एक्ट है, इसके लिए एक्ट है, मतलब इससे क्या मतलब, एक्ट में स्पेसिफिक, ये जो ना सिक्योरिटी ओनली सिक्योरिटी के बारे में ही होगा, और किसी के बारे, मतलब ये एक्ट में कंपनी के बारे में नहीं होगा, कंपनीज एक्ट में कंपनी के बारे में ही होगा, पार्टनरशिप के बारे में नहीं होगा, है कि नहीं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के बारे में ही होगा, ये चीजों के बारे में नहीं होगा। बट ये सब चीज एक्ट है डिफरेंट, ये सब एक ही लॉ में जाते हैं। क्लियर? जिसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ। ओके, ये जो कि है अभी आपका पेपर है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन डिटेल, बट उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? तो ये सब उसके अंदर जाता है। आगे समझ में अभी लॉ क्या है और एक्ट क्या है। क्लियर? चलो, मैं नीड के पहले आपको इसलिए ये बता दिया क्योंकि इट मे क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस द एक्ट, नॉट लॉ। क्लियर? बट वो एक मतलब लॉ एक टोटल है, उसके अंदर डिफरेंट एक्ट्स आते हैं। ओके, क्लियर? जैसे कि आप लोगों ने ये भी सुना होगा, ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा साहब, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल चीज है, जो हम देखते हैं, ठीक है, जो हम देखते हैं सुनते हैं। देखो कि एक अगर कोई क्राइम करता है तो क्राइम के रिलेटेड बहुत सारे एक्ट हैं, है कि नहीं? क्राइम को रिलेटेड
उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एक्ट हैं, ठीक है। तो वो सब एक्ट एक ही चीज के अंदर आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनल, क्लियर, पेनल लॉ और क्रिमिनल लॉ जिसको बोलते हैं। ऑल क्रिमिनल मैटर्स, ऑल क्रिमिनल एक्ट्स आर कमिंग अंडर क्रिमिनल लॉ, ठीक है। क्रिमिनल छोड़ने के बाद बाकी जो आता है सिविल मैटर्स आता है। सिविल मैटर मतलब, सिविल मतलब सोशल, ठीक है। इन रिलेशन कोई किसी का प्रॉपर्टी ले गया, कोई किसी का राइट्स उसको मतलब फुलफिल करने के लिए नहीं दे रहा है, मेरा ये राइट है, कोई मुझे अपोज कर रहा है, ठीक है। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, पढ़ाई का जो अपना जो है फंडामेंटल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब क्रिमिनल मैटर में नहीं जाता है, वो किधर में जाएगा, वो जाएगा अपना सिविल लॉ। तो सिविल लॉ के अंदर भी बहुत सारे एक्ट हैं, प्रॉपर्टी के लिए अलग है, फैमिली के लिए अलग है कि नहीं, फंडामेंटल्स के लिए अलग है, ठीक है। ये सब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी देखो कि व्हाट इज द नीड ऑफ लॉ। तो लॉ क्यों आता है, जैसे कि हमने पता चला कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी, पीसफुल, स्मूथ रनिंग के लिए लॉ चाहिए, है कि नहीं। लॉ मतलब, लॉ का मतलब क्या है, लॉ का मतलब है सिंपल, रूल्स, ओके, रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स। लॉ का मतलब सिंपल, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, जो हम फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को इजिली मेंटेन करने के लिए। सो व्हाट इज द नीड ऑफ लॉ, वी कैन से द नीड ऑफ लॉ इज, विदाउट लॉ, वी कैन से विदाउट लॉ, अगर लॉ नहीं होता, विदाउट लॉ सोशल स्टेबिलिटी, पीस, सोशल स्टेबिलिटी, पीस, clear, was destroyed, was destroyed, clear। अगर लॉ ना हो तो जो सोशल जो पीस है, स्टेबिलिटी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो मैंने लिया एग्जांपल कि आप सोचो कि अभी आप जो सोसाइटी में रहते हो, सोचो कि जो दुनिया है अपना, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर अपना उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट है, उधर आप क्या करते हो कि सब चीज के लिए जो हम देखते हैं ना, सब आसानी से होता है, स्मूथली। बस कैसे चलेगा, कौन से रास्ते पे जाएगा, कौन कैसे आएगा, कौन क्या खाएगा, है कि नहीं, खाने का, पीने का, घूमने का, काम करने का, सबका एक एक अलग अलग रूल्स है। वो सोचो कि अगर रूल ना होते तो क्या होता, सोचो कि हम घर से निकलते ही रोड के ले लो, ट्रैफिक रूल, तो ट्रैफिक रूल है इसलिए सोशल स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब है। अगर नहीं होता तो सब अपने अपने हिसाब से, अभी देखो लॉ बना के भी लोग तोड़ देते हैं कि सोचो लॉ ना होता तो क्या होता, भगवान को मालूम है कि नहीं। हम तो घर से निकलने से ही डर जाते कि नहीं जाते, चलो लाइफ है तो सब है, जान है तो जान है कि नहीं। तो लॉ इसलिए बनाया गया। तो विदाउट लॉ सोशल स्टेबिलिटी, पीस वाज डिस्ट्रॉयड, क्लियर। और क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल was violated, जो कि है अपना, है कि नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना विधान, क्लियर, जो अपना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, द फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो जो है वो भी वायलेट हो जाता अगर सोसाइटी में लॉ ना होता, है कि नहीं। क्योंकि सबको पता है कि अगर आप किसी एक को उसका फंडामेंटल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने के लिए रोकोगे तो दैट इज ए क्राइम, क्लियर, दैट इज अगेंस्ट लॉ। अगेंस्ट लॉ रूल है, आप तोड़ो तो आपको पनिशमेंट होगा। तो अगर ना होता रूल तो ये भी सब वायलेट करते, सब, कोई भी किसी को फॉलो ना करता, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, nobody care for, nobody means कोई भी, फैमिली मेंबर भी ले लो, फैमिली मेंबर्स भी, अभी आप देखो फैमिली के अंदर भी अपना एक बॉन्डिंग में हम रहते हैं, फिर भी जब भी आपको गुस्सा आता है तो बच्चे क्या करते हैं, पापा के ऊपर चिल्लाते हैं, मम्मी के ऊपर चिल्लाते हैं, क्लियर, छोटे भाई बड़े के ऊपर चिल्लाते हैं, बड़े छोटे के ऊपर चिल्लाते हैं, क्लियर। तो
अपने क्या है कि फैमिली बॉन्डिंग है, दैट इज द लॉ, दैट इज द हिडन रूल. हम भी एक रूल में बंधे हैं. रेस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट, दैट इज ऑल्सो ए लॉ, है कि नहीं? अपने हिसाब से, उसके लिए कोई नहीं है लॉ. तो उसके हिसाब से हमने, अगर सोचो कि अगर ये ना होता तो हम क्या करते? किसी को भी मार देते, है कि नहीं? बाहर भी देखो रूल है कि हम किसी को भी नहीं मार सकते, दूसरे के इंटरेस्ट को हम नहीं हैम्पर कर सकते. उसका अगर कोई मन है, जैसे कि हम बोलते हैं कि आफ्टर गेटिंग द एज ऑफ योर मेजोरिटी, मेजर होने के बाद आपके पास पूरा का पूरा राइट आ जाता है कि आप अपने लाइफ को क्या करना चाहते हो, किस और लेना चाहते हो. मतलब यू हैव टोटल फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ योर लाइफ आफ्टर यू गेटिंग मेजर. 18 साल होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से. क्लियर? आपको कोई भी नहीं रोक सकता. अगर आपको कोई रोकेगा ये मत करो वो मत करो, देन यू हैव द राइट टू गो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन. ये भी है रूल. सोचो कि अगर ना होता रूल तो हर कोई दूसरे को दबा के रखता. क्लियर? सो नोबडी केयर फॉर अदर्स इंटरेस्ट, नोबडी केयर्स फॉर अदर्स इंटरेस्ट. ओके, नोबडी केयर फॉर अदर्स इंटरेस्ट. एंड उससे क्या होता? एंड बाय दैट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन जो है अपना सिविलाइजेशन, जो कि हम मिलके रहते हैं, दैट इज सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन मतलब जो एक ग्रुप में, एक सोसाइटी, एक स्ट्रीट, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक कंट्री, दैट इज सिविलाइजेशन. जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था हिस्ट्री में. सिविलाइजेशन हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो एक रहता है ना सिविलाइजेशन, उधर से स्टार्ट हुआ. पहले क्या होता था? सब अलग अलग रहते थे बट सब ग्रुपिंग में रहो, दैट इज सिविलाइजेशन. एक जगह पे एक फैसिलिटी बना के जो रहते हैं, दैट इज सिविलाइजेशन. जो सोसाइटी में मिलके रहते हैं. क्लियर? तो वो क्या होता? बाय दैट द सिविलाइजेशन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है कि नहीं? क्लियर? एंड ये तो हो गया जीने के लिए, है कि नहीं? दैट इज, मैं सुनो सब चीज दो एग्जांपल में लूंगा, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि उसका हमें नॉलेज अच्छे से है. तो ये हो गया ना नॉन इकोनॉमिक, सोशल स्टेबिलिटी पीस डिस्ट्रॉयड. नॉन इकोनॉमिक मतलब अपने दिमाग में पूरा टेंशन चलता. फंडामेंटल राइट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नॉन इकोनॉमिक है. नोबडी केयर फॉर अदर्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब इट मे बी योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट और नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं मैं चार्टर्ड अकाउंट करूंगा. क्लियर? और दूसरे आपको बोले नहीं नहीं चार्टर्ड अकाउंट नहीं करना है, आपको आर्ट्स में जाना है. क्लियर? ये अपना इंटरेस्ट है, ये प्रोफेशनल आ गया. आप सोचो कि ये मैं करने से अच्छा लगेगा, है कि नहीं? चलो आपका मेजर हो गया, जॉब करने का एज हो गया, आप सोच रहे हो कि मैं बिजनेस करूंगा, बट नहीं, आपको दूसरे बोले नहीं तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते. आपने सोचा कि चलो मैं ये एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में मेरा एक बिल्डिंग है, उधर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप डालूंगा. उधर के लोग आपको बोले नहीं तू इधर नहीं डाल सकता इलेक्ट्रॉनिक शॉप, दैट इज अगेंस्ट लॉ. आपके इंटरेस्ट, आप दूसरे को इंटरेस्ट को अपोज नहीं कर सकते. अगर कोई करेगा तो यू हैव द राइट, द लॉ गिव अस द राइट कि आप उसके अगेंस्ट कर सकते हो. वो एक तो नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि लॉ है. अगर वो करेगा तो आपको सपोर्ट है कि सोचो तो लॉ ना होता तो आपको सब हर कोई दबा देता, नहीं ये नहीं करना है वो नहीं करना है. सो द इंटरेस्ट मे बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक जो मैंने बोला पढ़ाई के लिए, खाने का पीने का, आप खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, क्लियर? वो रेस्टोरेंट में नहीं ये आप नहीं खा सकते, आप बच्चे हो आप नॉनवेज नहीं खाने को दूंगा मैं आपको, तो उसमें नहीं है आपका इंटरेस्ट है. ठीक है? तो एंड उससे क्या होता है? सिविलाइजेशन. जो हम मिलके रहते हैं, मिलके हम क्यों रहते हैं? सोचो कि व्हाई वी डू सिविलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट क्यों आया? प्रॉब्लम होने से. व्हाट प्रॉब्लम? सिक्योरिटी प्रॉब्लम, खाने पीने का प्रॉब्लम, म्यूचुअल हेल्प, सपोर्ट, ये सब चीजें पाने के लिए है हमने सिविलाइजेशन को डेवलप किया, है कि नहीं? क्योंकि देखो प्रीवियसली क्या होता है, जब ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए, चिंपांजी थे, वो लोग क्या करते थे? सोसाइटी में नहीं रहते थे, देयर वाज नो सिविलाइजेशन. वो लोग क्या अपने अपने हिसाब से एक जंगल में जाते थे, खाते थे, घूमते थे, खत्म हो गया चीजें, दूसरा जंगल, फिर तीसरा, फिर नेक्स्ट जंगल. ऐसा करते करते जब उन लोग को पता चला कि दूसरे से कोई खाने का पूरा खत्म हो गया, कोई हेल्प नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, एनिमल्स खा जाते हैं,
ठीक है, दूसरे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को मार देते हैं, वाइल्ड एनिमल लोगों को मार देते हैं, तो सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, खाने का पीने का म्यूचुअल हेल्प सपोर्ट चाहिए। ये जब हम लोग को समझ में आया, वो लोग सिविलाइजेशन में सिविलाइज, दे गो फॉर सिविलाइज। तो अभी हम सिविलाइजेशन में उसी रीजन के लिए हैं, ताकि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम भी हो तो म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल सपोर्ट, सिक्योरिटी के हिसाब से हम रह सके। ठीक है, तो वो नहीं रहेगा, उसके लिए भी हम लॉ बनाए। और क्या होगा कि अपना जो है ना सोशल लाइफ एंड बिजनेस लाइफ, सोशल, बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल, अपना सोशल लाइफ, बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ was also we can say imbalanced. ओके, क्लियर? आ गया समझ में स्टूडेंट्स? ये है नीड फॉर लॉ। ओके, और why I say you must have the knowledge of law? Why everybody must have the knowledge of law? Because if you don't have the knowledge of law, it means you may, clear, you may did some wrong things, you may do some wrong things which may be against the law, may be against the law. आपको रूल पता नहीं है, आप काम कर रहे हो, तो जो काम आपने किया मे बी वो रूल के अगेंस्ट हो, तो आपको तो पता नहीं है, क्लियर? तो आपने कर दिया, जो किया वो रूल के अगेंस्ट था, फिर क्या होगा? आपके अगेंस्ट में पनिशमेंट आएगा डेफिनेटली। तभी आप बोलोगे कि सर ये जो मुझे पता नहीं था, देन यू हैव नो एक्सक्यूज। आपके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा, बिकॉज एज ए सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट पर्टिकुलर स्टेट एरिया, if you are going for do particular thing, you must have the knowledge of those things. क्योंकि बोलते हैं कि अगर कोई काम नहीं पता तो मत करो, पता है तो ही करो। पता है मतलब you have all knowledge about the particular thing. अगर ना करोगे, सोचो कि ये जो मैंने बोला कि मिक्सर ग्राइंडर लाए, रूल ना पढ़े हुए आपने चला लिया, वो ब्लास्ट हो गया, आपका मुंह फट गया, आप फिर क्या करोगे? क्या करोगे? आप वो मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर केस करोगे? कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि सर ये मिक्सर ग्राइंडर फट गया, नहीं, उसमें उसका कोई गलती नहीं है, बिकॉज आप अगर उसको हैंडल कर रहे हो, ठीक है, तो यू मस्ट हैव दैट नॉलेज दैट हाउ टू हैंडल दोस थिंग्स, हाउ टू हैंडल दैट मिक्सर ग्राइंडर। अगर उसमें आपको रूल नहीं पता, नॉलेज नहीं है, वो काम किया, प्रॉब्लम हुआ, गलती किसका है? आपका ही गलती है। आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे पता नहीं था, मुझे उसने नहीं बताया, ये नहीं था, वो नहीं था, नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? जैसे कि आपको हम सबको ट्रैफिक रूल पता है, अभी नया वाला पता है। सोचो कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आप गाड़ी लेके निकल गए, आप एक माइनर हो, गाड़ी लेके निकल गए, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपके ऊपर फाइन डालेगा कि नहीं? आप थोड़ी ना बोल सकते कि सर मुझे तो रूल पता नहीं है। पता नहीं है तो गाड़ी लेके क्यों आए रोड पे? अगर गाड़ी लेके आए तो आपको रूल पता होना चाहिए था। अगर पता नहीं है तो यू हैव नो एक्सक्यूज, आपके ऊपर डेफिनेटली पेनल्टी आएगा ही आएगा। आ गया समझ में? तो रूल ऐसा है कि एवरीबॉडी व्हेनेवर एक अगर चीज के ऊपर, एक स्टेट के ऊपर, एक एरिया के ऊपर एक लॉ एस्टेब्लिश हो गया, क्रिएट हो गया, then all the member citizen of that particular state, of that particular area must have the knowledge of that law, clear? And you should follow that law. If you don't follow that law, then definitely the adverse impact will imposed on you. Okay, clear? So that is the importance of law, need and importance of law. You must have the knowledge of law. Clear? अभी ये हम देखेंगे, फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बोल रहा हूं। इंट्रोडक्शन में हम टोटल लॉ के लिए, टोटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपके माइंड में पूरा एक हर एक चीज डिस्टिंक्ट वे में आपके माइंड में हो, ताकि आप आगे पढ़ने पे आप हर एक चीजों को अलग अलग से मिक्सअप ना करें। क्लियर? अपना जो मेन क्लास है वो तो है बिजनेस लॉ, है कि नहीं? बिकॉज वी आर इन द प्रोफेशन ऑफ कॉमर्स, वी आर इन प्रोफेशनल कॉमर्स, ठीक है कि नहीं? प्रोफेशनल कॉमर्शियंस, ये सब नो कॉमर्शियन है हम सब प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन।
तो हमको कौन सा लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोचो कि हम अगर लॉयर के पढ़ाई करते तो हमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ उसको पढ़ने के लिए चाहिए था, प्रोसीजर लॉ। अगर हम आईएएस आईपीएस एग्जाम में पढ़ रहे होते, सोचो कि ये अगर आईपीएस आईएएस का एग्जाम होता तो मैं आपको क्या पढ़ा था, लॉ पढ़ा था, बट सब चीज के लिए अलग अलग लॉ है। तो मैं उधर आपको आईएएस के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में वो पढ़ा था आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडवोकेट होते तो आपको सब तो पढ़ना है, बट एडवोकेट में भी है, एक सिविल एडवोकेट है, एक क्रिमिनल एडवोकेट है, क्रिमिनल लॉयर एंड सिविल लॉयर। सुना होगा कि जो सिविल लॉयर है उसको सिविल लॉ ज्यादा पढ़ना है कि नहीं, और जो क्रिमिनल है उसको क्रिमिनल लॉ ज्यादा पढ़ना है। वैसे ही हम कॉमर्स के फील्ड में हैं तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लॉ, दैट इज नोन एज बिजनेस लॉ, मार्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, जो कि है अपना पेपर। हम अपना पूरा कैरियर एंड तक वही उसी को पढ़ेंगे, उसी को इंपॉर्टेंस देंगे। जितना भी है कमर्शियल लॉ के अंदर सब पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं एक्ट, सब एक्ट आप पढ़ोगे, सब एक्ट। उसके साथ आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हम कॉमर्स का काम करते हैं, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सोसाइटी में नहीं रहते, सोसाइटी में रहते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, तो उसके हिसाब से वो नॉलेज भी हमें होना चाहिए। तो ये जो इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैं आपको पूरा का पूरा डिस्टिंक्ट वे में समझा दूंगा, ठीक है, कि कौन सा लॉ किसके लिए है, कौन सा लॉ कौन का क्या काम करता है, उससे आपका पूरा का पूरा माइंड क्लियर हो जाए, फिर पूरा जनरल नॉलेज आ गया, फिर आप एक ही चीज में हम जाएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, दैट इज अवर कॉमर्शियल लॉ और प्रोफेशनल लॉ। क्लियर? सोचो कि कॉमर्शियल लॉ मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट में आपको बोला है कि नहीं, अभी मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट में पूरा समझा रहा हूं, समझाऊंगा इन द होल इंट्रोडक्शन क्लास, फिर हम स्पेसिफिक जाएंगे कॉमर्शियल लॉ के अंदर, ठीक है? क्लियर? तो इससे आपको पता चल गया होगा कि लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है कि नहीं। अगर लॉ ना हो तो अपना कॉमर्स भी जो हमने इधर देखा, एंड बिजनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। क्योंकि सोचो कि आप एक चीज खरीदने के लिए गए, कोई एक आपको एक चीज बेचा, वो सोचो कि आपको एक डुप्लीकेट चीज बेच दिया, आपने लेके आ गए, घर में ऑन किया, काम नहीं कर रहा है, फिर क्या होगा, यू हैव द राइट्स। क्लियर? आवर कमर्शियल लॉ विल गिव सम राइट्स कि आप अगर कोई ऐसा कोई चीटिंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं। कॉमर्स में हमने जैसे देखा कि जो कि है अपना मेन ट्रेडिंग बिजनेस, क्लियर, ट्रेडिंग, सेल, परचेज, सेल, ये सब के रिलेटिंग हम सब देखेंगे अपना जो है कमर्शियल लॉ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर लॉ ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी को कोई आसानी से नहीं बेच सकता विथ फुल ट्रस्ट हो भी तो चलेगा, सिक्योरिटी चाहिए है कि नहीं। हम क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्रेडिट बिजनेस करते हैं कि नहीं। तो क्या होता है उसमें, हम देखते हैं कि लॉ है अपने पास कि चलो कोई अगर उसको वायलेट करता है तो अपने पास लॉ है, वी हैव सपोर्ट्स। क्लियर? तो वो हम जनरल में जाएंगे। क्लियर? ओके, तो दैट इज द नीड ऑफ लॉ। फिर अभी हम देखेंगे द फुल डिटेल जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। क्लियर? आई होप कि ये जो है क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही टेक्निकली चीजों पे नहीं जा रहा हूं, जनरल थिंग्स में ही आपको समझा रहा हूं। क्लियर? सो अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ। लॉ एक्चुअली है क्या, किससे आया, किधर आया, जैसे। क्लियर? तो मैं एक एक चीज आपको मैं लिखूंगा, आपको वो चीजें लिखना है, ठीक है? क्लियर? सो law, we can say law is commonly understood as a system of rules, regulation system, मतलब एक बाइंड करके हमने सी के जोड़ा है, जोड़ के बनाया है कि नहीं। so law is commonly understood as a system of rules that are created and enforced। उसको पहले हम बनाते हैं, फिर enforced मतलब लागू करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं सोसाइटी में, है कि नहीं। तो क्रिएटेड एंड एनफोर्स थ्रू सोशल एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस,
जो कि अपना है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उससे हम उसको लागू करवाते हैं। ओके, तो चलो ये लिख लो कि फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। लॉ इज कॉमनली अंडरस्टूड as a system of rules and regulations that are created and enforced through सोशल चैनल। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सोशल चैनल क्यों? क्योंकि जब भी हम एक लॉ बनाते हैं, जब भी एक रूल बनाते हैं, वो बनाने से इन बिटवीन जिसके लिए हम रूल बनाते हैं उसके लिए डेफिनेटली हम उसका क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, है कि नहीं। तो दैट बिफोर वी मेक ए लॉ, दोज आर गोइंग थ्रू दिस सोशल चैनल, मतलब लोगों को बताते हैं हम कि ये होने वाला है, ये होगा, आप डिबेट करो, अपना फीडबैक दो, अच्छा है, बुरा है, क्या लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, उसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस करेंगे, ताकि मतलब हम देखो लॉ इसलिए बना रहे हैं हम कि लोगों को आसानी हो, नॉट कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो डेफिनेटली हम ये चीज अगर बना रहे हैं तो वो तो पहले से ही हम अगर ले लेंगे कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उससे क्या होता है कि फिर जाके लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंशन होगा कि सर ये बना दिया, ये तो बहुत प्रॉब्लम है, ये तो हमें पता नहीं, ये तो हम फॉलो नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बनाने से पहले आपका फीडबैक लिया गया है, आप लोगों ने उसके लिए हाँ बोला है, सही बोला है कि हाँ ये ठीक है, सही है, उसके बाद बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए सोशल चैनल से ही वो जाता है, ठीक है। दोज आर क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड थ्रू सोशल चैनल्स, क्लियर, बाय appropriate authority, appropriate authority मतलब हर कोई रूल्स लॉ बना सकता है, हर कोई क्या है वो मैं सब्सिक्वेंट क्लासेस में बोलूंगा। ये जो हर कोई का मतलब क्या है, ठीक है, कौन कौन बना सकता है, हर कोई मतलब मैं सबके लिए रूल नहीं बना सकता, मैं अपने लिए रूल बना सकता हूं, मैं आई मे क्रिएट फॉर माई सेल्फ, बट फॉर सोसाइटी मैं अकेले नहीं रूल बना सकता। सोसाइटी में बनाने के लिए एक सोशल स्टेबिलिटी, एक ऑथराइज्ड पर्सन ही वो बना सकता है। तो वो कौन है वो ऑथराइज्ड पर्सन, वो हम देखेंगे इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस फर्दर, ठीक है, सेशन में देखेंगे, क्लियर। सो दैट इज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये बनाएगा, ठीक है। देन वी कैन से इट इज द आर्ट and science, it is the art and science of justice मतलब न्याय, है कि नहीं। हम बोलते ना कि सर मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये मुझे मिलना था ये नहीं मिला, ये होना था ये नहीं हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ। जस्टिस मतलब जो सही है वो सही करना, दैट इज जस्टिस। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो लॉ इज द आर्ट, उसके पास ऐसा ट्रिक है, टैलेंटेड टेक्निक्स है, साइंस ऐसा रूल्स रेगुलेशन है जिससे आपको जस्टिस मिल पाए। सो इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ जस्टिस, क्लियर। देन लॉ इज डेवलप्ड, क्लियर, लॉ इज डेवलप्ड इन evolution, law is developed evolutionary, law is developed evolutionary. Why I say evolutionary? evolution मतलब आप लोगों को पता है कि एक है नेक्स्ट प्रोसेस में उससे कुछ नया 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 न्यू डेवलप्ड वर्जन्स, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। कि लॉ भी डेवलप्ड, वो डेवलप हो रहा है, इवोल्यूशनरी मतलब सोसाइटी। देखो लॉ हम बनाते हैं सोशल स्टेबिलिटी के लिए, कि सोचो कि सोसाइटी में जब भी कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके लिए हम लॉ बनाते हैं,
तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज ए डेवलप्ड इवोल्यूशनरी, धीरे धीरे डेवलप होता है। क्लियर? सो लॉ इज डेवलप्ड इवोल्यूशनरी, क्लियर, विथ द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जो जो हिसाब से बढ़ता है, डेवलप होता है, उसको कोप करने के लिए, संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए हम उसके हिसाब से नया नया लॉ बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे कि एग्जांपल, पहले ट्रैफिक रूल अलग था, अभी हमने उसको इवॉल्व किया, नया बनाया, अपडेटेड बनाया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हमने देखा कि व्हीकल्स ज्यादा हो गए, लोग ज्यादा हो गए, रूल्स नहीं मान रहे हैं। प्रीवियस रूल उन लोगों के लिए बहुत ही, मतलब सोचो कि एक हट्टे कट्टे आदमी को आपने एक चिमट लगा दिया, वैसा हो रहा है कि नहीं? इसलिए हाई बनाया कि हट्टा कट्टा आदमी तो जोरदार का एक थप्पड़ लगेगा तो उसको फील होगा, हाँ मैं बाकी दूसरा गलत काम नहीं करूंगा। तो इसके लिए लॉ को फिर से डेवलप किया गया, अपडेटेड किया गया, ताकि वो लोगों के ऊपर इंपैक्ट कुछ आए, लोग उसको अच्छे से फॉलो करें। क्लियर? सो दैट्स व्हाई लॉ इज डेवलप्ड इवोल्यूशनरी विद द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। सोसाइटी जैसे डेवलप होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से लॉ बनेगा। क्लियर? ओके, देन ये जो हमने देखा लॉ इज डेवलप्ड, फिर हम देखेंगे कि लॉ आया कहां से। क्लियर? द लॉ मीन्स ए सिस्टम ऑफ rules, regulations and principles that we call law, है कि नहीं? The law means a system of rules, regulations, principles, clear, was first developed by king। पहले किधर से आया ये लॉ? बाय किंग हम्मुराबी, बाय किंग हम्मुराबी, क्लियर, ऑफ मेसोपोटामिया। हम्मुराबी ऑफ मेसोपोटामिया, क्लियर। ही रिवील्ड द कोड ऑफ लॉ। कोड मतलब जो कि टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, कोड वाइज हम देते हैं, ठीक है। रिवील द कोड ऑफ लॉ, क्लियर। उन्होंने सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है कि मेसोपोटामिया वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन, जब पहले सबसे पहले सिविलाइजेशन क्रिएट हुआ है कि नहीं, मेसोपोटामिया, वहां के पहले किंग थे हम्मुराबी। तो वो जो रूल बनाए, डेफिनेटली सब मिलकर रहे, तो अच्छे से रहने के लिए उन्होंने रूल बनाया, दैट इज लॉ। तो पहले से उधर से आया था, क्लियर। सो उन्होंने पहले बनाया, दैट्स व्हाई सो ही इज known as the god of, he is known as the god of justice, god of justice। king hammurabi of mesopotamia known as the god of justice, क्योंकि उन्होंने ही पहले ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था कि सिविलाइजेशन में, सोसाइटी में अपने पास एक रूल होना चाहिए ताकि लोग उसको फॉलो करें एंड लाइफ अच्छे से चल पाए। लाइफ मतलब बोथ अपना सोशल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ अच्छे से चल पाए, ताकि जो पर्पज से, जो रीजन से हम लोगों ने सिविलाइजेशन पे आए, वो अच्छे से फुलफिल हो पाए, फ्रूटफुल हो पाए, अच्छा हो पाए। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ लॉ, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि द डेफिनेशन, क्लियर, डेफिनेशन एंड द डिफरेंट, जो मैं बोला कि लॉ के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो कि सिविल, प्रोसीजर है कि नहीं, क्रिमिनल, बिजनेस, वो सब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आप एक बार समझ गए तो आपका जो लॉ के लिए जो अननोन मींस योर माइंड नाउ टोटली
स्ट्रेंज अबाउट लॉ, बट अभी आपको थोड़ा थोड़ा आ गया समझ में। अभी ये जो दूसरे क्लास में जो मैं बोलूंगा डेफिनेशन, ब्रांचेस, वो खत्म होने के बाद आपका पूरा का पूरा माइंड पूरा डेवलप हो जाएगा। आप लॉ मतलब आप बिलीव करो कि आप अभी जो सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो मे बी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बट ये क्लास आप अटेंड करने के बाद आई एम 100% श्योर, क्लियर, आई गारंटी यू कि आपको वो सब चीजें इजीली समझ में आ जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम सोसाइटी में हैं, बट सोसाइटी का रूल हमें अभी नहीं मालूम। मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम। रूल मतलब ऑल लॉ आपको नहीं मालूम। डिटेल में जानने के लिए जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में, आप सब चीजों को अच्छे से समझ पाओ। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आज का क्लास इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ए सेकेंड इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट लॉ, क्लियर, जिसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ, क्लियर। उसके साथ हम जाएंगे फिर अपना जो है क्राइटेरिया लाइन, दैट इज कॉमर्शियल एंड बिजनेस लॉ। ओके, क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास, क्लियर, we'll go for the other things. Clear? So thank you for today and have a nice day. Thank you.